أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہیں شرماتی ہے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہوئی چیز کی ہو۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ جانتے ہیں یہ کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے صحیح موقع کی ہے، حق ہے۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ فرمایا اللہ نے اس جیسی مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت ساروں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے مگر نافرمان لوگ، فاسق لوگ۔ ان آیات کا شان نزول کی یہ آیتیں اللہ رب العزت نے کس واقعے کے موقع پر ذکر کی ہیں، نازل فرمائی ہیں؟ لکھا ہے کہ پچھلی آیتوں میں جو منافقین کی 2 مثالیں پیش کی اور ان کو 2 مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، ایک تو آگ اور ایک پانی کی مثال دے کر کے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کلام، تو اس اتنے بڑے کلام کے اندر ان چھوٹی سی چیزوں کی مثال کو بیان کیا، کہیں آگ کی مثال دے کر سمجھایا، کہیں پانی کی مثال دے کر سمجھایا، اور بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بعض جگہ مکھی کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے، بعض جگہ مکڑی کے جالے کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ تو ان لوگوں کو اعتراض یہ ہونے لگا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس بادشاہ کا کلام جو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اس میں ان حقیر اور تھوڑی سی چیزوں کی مثال بیان کرنے سے کیا مقصد ہے؟ لہذا اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کو کیا ہے، نازل فرمایا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو مثال سے سمجھانے کے لیے کوئی آر نہیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ مثال دے کر کسی چیز کو سمجھایا جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جس چیز کو سمجھایا جاتا ہے اس چیز کی مناسبت سے ہی مثال دی جاتی ہے۔ جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی بڑی مثال کیا ہے، اس سے مثال دے کر کے اس چیز کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ہے ضابطہ اور اصول۔ ان مثالوں کو لا کر کے اللہ رب العزت ان کفار اور مشرکین کے معبودان باطلہ کی کمزوری اور ان کا ضعف سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس موقع پر اللہ نے کون سی مثال پیش کی۔ ایک موقع پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال پیش کی، مکھی کی مثال سے سمجھایا، جیسے کہ یہاں ہے مکھی کی مثال سمجھا کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے میرے بندو جن کو میں نے پیدا کیا ہے، تم
जो मुझे छोड़कर दूसरों को माबूद समझते हो हैं, वो तुम्हारे माबूदान बातिल इतने कमज़ोर हैं कि अगर उनके हिस्से से एक मक्खी कोई चीज़ लेकर भाग जाए तो वो उस मक्खी से अपनी चीज़ को वापस ले नहीं सकते हैं। और अगर उन माबूदों के बदन के किसी हिस्से पर ये मक्खी बैठ जाए तो वो अपने बदन से मक्खी को हटा नहीं सकते हैं। जब तुम्हारे जो माबूद हैं इतने कमज़ोर हैं कि एक मक्खी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, फिर क्या तुम लोगों को अकल नहीं है कि तुम मुझ रब को भुलाकर इन माबूदों को तुम अपना माबूद हक समझकर तुम इबादत करते हो। इन माबूदों की कमज़ोरी और ज़ौफ़ को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मक्खी की मिसाल दी है। और दूसरी जगह मिसाल दी है मकड़ी के जाले की, और ये समझाया कि तुमने जिन लोगों को अपना माबूद समझा है, चाहे वो पत्थर के बुत हों या इंसानी शक्ल में कुछ और इंसानी शक्ल में बुत हों, वो जिनको तुमने माबूद बनाया, तो इंसान आंधी तूफान जब आता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो उससे बचने के लिए किसी चीज़ का सहारा ले, किसी छत का सहारा ले, किसी मकान का सहारा ले, और बसा औकार किसी दरख्त का सहारा ले लेता है। तो सहारा इसलिए लेता है ताकि इस तूफ़ानी बारिश से, इस तूफ़ानी हवा से मैं बचूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि भला ज़रा ये बताओ, ज़रा सोचो कि सख्त से सख्त तूफ़ानी हवा चल रही है और एक आदमी उससे बचाव के लिए मकड़ी के जाले के अंदर जाकर पनाह ले, क्या उसको कोई अक्लमंद तसव्वुर कर सकता है? उसको कोई भी अक्लमंद तसव्वुर नहीं कर सकता है। और अल्लाह ने बतलाना मकसूद है कि जैसी चीज़ को समझाना है मिसाल भी वैसी बयान की जाती है। ये मौका और महल के मुताबिक मिसाल हुआ करती है। तो अगर वो इंसान तूफ़ानी बारिश या तूफ़ानी हवा से बचने के लिए एक मकड़ी के जाले के अंदर पनाह ले तो इंसान बच नहीं सकता है, और मकड़ी का जाला उसको बचा नहीं सकता है। हवा का एक मामूली सा झोंका आएगा, वो जाले को उड़ा ले जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, कि तुमने जिनको माबूद समझा है वो तुम्हारी हिफाजत क्या कर सकते हैं, जबकि वो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। इन्ना अवहनल बुयूतिल लबैतुल अनकबूत, घरों में सबसे कमज़ोर घर जो होता है वो मकड़ी का घर है, और उस मकड़ी के घर के अंदर तुम क्या अपनी पनाह लेना चाहते हो? यहाँ तुम्हें पनाह हासिल नहीं हो सकती है। लिहाजा तुम जिन बुतों को अपना माबूद समझते हो, अपना सब कुछ समझते हो, और जो माबूद हकीकी रब की ज़ात है उसको तुम भुला बैठे हो, वो बुत तुम्हें किसी भी चीज़ से हिफाजत कर नहीं सकते हैं। लिहाजा गौर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो कि हमें किस ज़ात को रब मानना है और किसको रब नहीं मानना है। जो रब ज़ात बनने की सलाहियत रखती है वो तो किसी के नफ़ा और नुकसान की सलाहियत का कायल भी होना चाहिए, उसके काबिल भी होना चाहिए। लिहाजा जिन माबूदों को तुम बुतों को तुम इबादतगार समझते हो और उनके सामने माथा टेकते हो, ये तुम्हारी खाम ख्याली है और तुम्हारा गलत फैसला है। इस गलत फैसले से तुम्हें क्या है, वापस आना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, यहाँ इसमें ऐसी मिसालें दे करके इम्तिहान लेना भी अल्लाह का बंदू से इम्तिहान लेना भी मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं अपने बंदू का इम्तिहान भी लेता हूँ इन मिसालों से। वो कैसे? कि जो ईमान वाले होंगे, जिन्होंने ईमान लाया है, वो तो कहेंगे कि मिसाल कोई सी भी है, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये हमारे रब की तरफ से मौका महल के मुताबिक है। क्योंकि समझाना था इन माबूदाने बातिला की कमज़ोरी और ज़ौफ़ को, वही कमज़ोर मिसाल पेश की। कमज़ोर चीज़ को समझाने के लिए हाथी की मिसाल देना अकल के मुताबिक नहीं है, बल्कि वो अकल के खिलाफ है। मकड़ी के जाले को समझाना किससे, एक पहाड़ की मिसाल देकर समझाना, यह अकल के खिलाफ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि भाई मैं इन कमज़ोर चीज़ों को समझाने के लिए इसी जैसी मिसाल को पेश कर रहा हूँ। तो ईमान वाले तो इसको कहेंगे यह अल्लाह की तरफ से है, वो तो क्या है, बच जाएंगे। और जो ईमान वाला नहीं है, जिसने अल्लाह पर क्या ईमान नहीं लाया है, वो क्या कहेगा, अल्लाह का इरादा क्या है इन मिसालों को लेकर के, वो इन मिसालों का मजाक उड़ाएंगे, वो अल्लाह का मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाएंगे कि एक तरफ से दावा इतनी बड़ी खुदाई का, फिर इतनी बड़ी मुकद्दस किताब का, और दूसरी तरफ से एक हकीर सी हकीर चीज की मिसाल देकर के क्या है हमारे सामने पेश करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो ऐसा कहेगा, इस मिसाल को हकीर समझेगा, अल्लाह की तौहीन करेगा, अल्लाह के कलाम की तौहीन करेगा, तो युज़िल्लु बिही कसीरा, वो क्या हो जाएगा, मजीद कुफ्र के अंदर पड़ता जाएगा और गुमराही के अंदर पड़ करके है कहां पहुंचेगा, आखिर में नतीजतन उसका ठिकाना कहां होगा, जहन्नम के अंदर होगा।
तो फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, जो ईमान वाले हैं वो इससे हिदायत पकड़ेंगे कि अल्लाह किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, हमें वहाँ से वापस आना चाहिए। और जो क्या होंगे, ईमान वाले नहीं होंगे, कुफ्र के अंदर पड़े होंगे, वो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि वो इस कुरान का मजाक उड़ाएंगे और अल्लाह की ज़ात का मजाक उड़ाएंगे। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इन जैसी मिसालों से गुमराह वही लोग होंगे जो नाफरमान होंगे, जो फासिक होंगे, फाजिर होंगे, जिन्होंने अल्लाह का क्या किया है, इनकार किया है। और वो लोग कौन हैं? अल्लज़ीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ि, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को उसके मजबूत करने के बाद। इस अहद से कौन सा अहद मुराद है? वो वादे अलस्त, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा के अंदर क्या है, तमाम रूहों को, अव्वलीन और आखिरीन की रूहों को जमा फरमाया था, और जमा फरमाने के बाद क्या किया, उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने एक जबान होकर के कहा बला, बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं कि आप हमारे क्या हैं, रब हैं। और इन लोगों ने इस वादे को भुला करके, इसको तोड़ करके इसकी खिलाफ वर्जी शुरू की और अपनी मनमानी जिंदगी शुरू की। अल्लाह ने फरमाया था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने कहा, इन मुशरिकीन ने कहा, इन कुफार ने कहा कि आप हमारे रब हैं। लेकिन जब दुनिया में आए और उस वक्त उन्होंने रब को छोड़ करके अपने इन पत्थरों के बनाए हुए बुतों को क्या है, रब समझा, और उनकी परस्तिश और इबादत करने शुरू हो गए। ये बात अल्लाह ने फरमाई कि इसके बाद वो वादा जो किया था उसको तोड़ देते हैं। ये उनकी क्या है, एक बहुत बड़ी गलती है, जिस गलती का खमियाजा उनको क्या है, कल क़यामत के दिन भुगतना होगा। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और वो तोड़ते हैं उस हुक्म को जिसका अल्लाह ने दिया था, ये कि वो क्या करें, जोड़े। अल्लाह ने क्या है, जोड़ने का जहां हुक्म दिया था उसको वो तोड़ देते हैं। वो युफ्सिदून फिल अर्द, और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग क्या हैं, नुकसान वाले हैं, खसारे वाले हैं। अब इस तोड़ने के अंदर वो तमाम मामलात हैं जो औलाद और बाप के दरमियान में मुआहदात हैं अल्लाह की तरफ से शरीयत के मुताबिक, उनकी खिलाफ वर्जी करना वो भी वयक़तऊन के अंदर दाखिल है। जो एक पड़ोसी का हक, उसके साथ कुरान ने, शरीयत ने जो बताया है कि पड़ोसी के साथ तुझे कैसे पेश आना है, अपने औलाद के साथ तुझे कैसे पेश आना है, दुनिया वालों के साथ तुझे कैसे पेश आना है, जहां अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी करने का हुक्म फरमाया, उसके खिलाफ करना, इसको कहते हैं वयक़तऊन। जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, ये मुनाफिकीन, ये मुशरिकीन, ये कुफ़ार उसके क्या करते हैं, उसके खिलाफ करते हैं। लिहाजा यहाँ इस ईमान वाले को भी क्या दावत है, एक लम्हा फिक्रिया है कि तुम्हें जिन लोगों से सिला रहमी करने का हुक्म है, अगर तुम भी उस सिला रहमी के खिलाफ करोगे, कता रहमी से पेश आओगे, चाहे अपने घर वालों के साथ कता ताल्लुक करो, चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक करो, चाहे तुम किसी के साथ भी कता ताल्लुक करो, तो उस कता ताल्लुक का नतीजा क्या होगा कि वो फासिकीन में शुमार किए जाएंगे, वो अल्लाह के नाफरमानों में क्या किए जाएंगे, शुमार किए जाएंगे। और उन लोगों के लिए क्या है, नुकसान का सौदा कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो नुकसान का सौदा कर रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयतों के अंदर क्या है, अपने इनामात का तज़किरा कर रहे हैं। तमाम वो इनामात जिससे हर कोई फ़ायदा उठा लेता है। इससे पहले जो इनामात थे वो मखसूस इनामात का तज़किरा था, अब उमूमी इनामात का तज़किरा है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। व कुंतुम अमवातन, हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, बस अल्लाह ने तुमको क्या किया, जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मौत दे दी जाएगी। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम क्या किए जाओगे, जिंदा किए जाओगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी अल्लाह की तरफ क्या है, तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात की तरफ दावत देना चाहते कि मैं वो रब हूँ। अगर तुम ये गौर करोगे कि मैं कैसा रब हूँ, अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरा इनकार कर ही नहीं सकते हो। क्यों? इसलिए कि तुम माँ की पीठ के अंदर क्या थे, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जिससे इंसान की तख्लीक है। वो तो क्या है, वो बाप जो होता है उसकी पीठ से, उस पीठ में उसकी जगह है, जो मनी का कतरा है वो पीठ से निकलता है, उसकी जगह है। और माँ को जो मनी के कतरे की जो जगह है वो क्या है, पिस्तानों के दरमियान में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वहां तुम्हारा मुस्तकर था, उस अंधेरी के अंदर तुम क्या थे, वहां मुर्दा कैफियत के अंदर वहां मौजूद थे। वह कुंतुम अमवातन, तुम माँ बाप की पीठ में मुर्दा होने की शक्ल में वहां मौजूद थे। फिर वहां से निकाल कर मादर रहम में पहुंचाया, फिर वहां तुमको पैदा किया। फ़अहयाकुम, और पैदा करने के बाद तुमको दुनिया के अंदर भेजा और दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे इस्तेमाल के लिए क्या है, बनाई। सुम्मा युमीतुकुम, यहाँ जब दुनिया की मियाद
मुराद तुम्हारी पूरी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इज़ा जा अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, उसके बाद तुमको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा और तुम दुनिया छोड़ कर चले जाओगे। फिर आखिर में एक वक्त आएगा कि तुम फिर अपने कब्रों से क्या किए जाओगे, वापस उठा लिए जाओगे। सुम्मा युहीकुम, फिर तुमको वापस जिंदा करके खड़ा किया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और तुम मेरे सामने जमा किए जाओगे और मैं तुम्हारी इन तमाम जिंदगी के लम्हात का तुमसे क्या करूंगा, हिसाब लूंगा। तुमसे एक एक चीज के बारे में क्या की जाएगी, पूछ की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं वो अल्लाह हूँ, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वो अल्लाह जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए तमाम की तमाम ज़मीन में वो चीज़ें, उन तमाम को अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया, पैदा किया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, माँ वो तमाम चीज़ें पूरी पूरी जो ज़मीन के अंदर मौजूद है। सुम्मस्तवा इलस समाई, फिर मुस्तवी हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है आसमानों की तरफ। फसव्वाहुन्न सबअ समावातिन, बस बराबर किया उनको 7 आसमानों में। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर चीज़ को जानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं वो अल्लाह हूँ कि जिसने ज़मीनों को तुम्हारे लिए क्या किया, पैदा किया। अब 6 दिन में ये तख्लीक पूरी हुई, ज़मीन आसमान जो भी इस ज़मीन के अंदर है ये 6 दिन के अंदर पूरी हुई। लिखा है मुफस्सिरीन ने, हदीस के अंदर लिखा है एतवार से ये काम शुरू हुआ और जुमा की शाम को ये काम क्या है, ख़त्म हुआ। अब मसला ये है कि पहले आसमान को बनाया या ज़मीन को बनाया, इसमें इख्तिलाफ हुआ है मुफस्सिरीन का, उलमा का। जमहूर सहाबा, जमहूर उलमा वो इस बात के कायल हैं कि पहले किसको पैदा किया है, आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, और उसके बाद क्या है, आसमान को पैदा किया। जो हजरात कहते हैं कि भाई ज़मीन को पैदा किया पहले, वो दलील क्या देते हैं, हुवल्लज़ी खलक़, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए क्या किया, सुम्मस्तवा इलस समा, वो कहते हैं कि ज़मीन को पैदा करने के बाद आसमान की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क्या है, मुस्तवी हुई। और जो हज़रात कहते हैं कि आसमान को पहले पैदा किया, वो दलील देते हैं सूरह नाज़ियात, अम्मा यतसाअलून जो पारा है उसके अंदर क्या, सूरह नाज़ियात में है वल अर्ज़ा बअद ज़ालिका दहाहा, कि ज़मीन को आसमान के बाद बिछाया गया। तो इस आयत से पता चलता है कि पहले क्या बनाया, आसमान बनाया गया है, और इस आयत से पता चलता है कि पहले ज़मीन को बनाया गया। ये इख्तिलाफ ऐसा है, इसमें बज़ाहिर तज़ाद है, दोनों जमातें कुरान की आयत को लेकर के दलील बनाते हैं। तो लिखा है कि जब ये इख्तिलाफ हज़रत इब्न अब्बास जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं उनके सामने पेश किया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें तत्बीक दी, असल में बात यह है कि पहले ज़मीन को ही पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ज़मीन को पैदा फरमाया और उसके बाद आसमान को। लेकिन जब बिछाने की बारी आई, जो ज़मीन की जो हैयत ज़मीन के इस वक्त है, ये आसमान के पैदा करने के बाद पैदा हुई, बनाई गई। इस ज़मीन को जो फैलाया गया पैदाइश के एतबार से, तख्लीक के एतबार से पहले ज़मीन बनाई गई, फिर जब इस ज़मीन को बिछाने की बारी आई, इस पर पहाड़ ये तमाम चीज़ें रखने की बारी आई, ये आसमान के पैदा करने के बाद हुआ। लिहाजा दोनों आयतों के अंदर क्या हो गई, तत्बीक हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम गौर करो मेरी ज़ात की तरफ कि मैंने इस ज़मीन को किस अंदाज से पैदा किया, और उसके बाद मैंने 7 आसमान। अब यहाँ जो साइंसदान हैं, अहले हैयत जिनको कहा जाता है, वो तो कहते हैं कि हमने 7, वो उनके मुताबिक 9 आसमान है, 7 नहीं, वो 9 आसमानों को क्या है, साबित करते हैं अपनी तहकीक के मुताबिक। तो लिखा है कि असल में उनकी तहकीक एक सतही तहकीक होती है, वो आलात के ज़रिए से उन्होंने ज़मीन के अंदर ये तह जो है ज़मीनों की, ये 9 देखी, 9 छतें देखी, उन्होंने कहा 9 आसमान है। और हकीकत ये है कि आसमान 9 नहीं बल्कि 7 ही हैं। क्यों? इसलिए कि उसूल है कि घर का मालिक वो जानता है कि मेरे घर में क्या है, साहिबुल बैती अदरा बिमा फीही, घर का मालिक वो जानता है कि घर में क्या क्या है। बाहर से आने वाला कहेगा कि इसमें ये है, इसमें ये, उसकी बात की तहकीक उसको माना नहीं जाएगा। मालिक कहेगा कि मेरे घर में क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इन चीज़ों के इस आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, उस रब ने कहा कि क्या है, खलक़ा सबअ समावात, कि मैंने 7 आसमानों को पैदा किया। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खालिक है, मालिक है, हमें इसका यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि 7 आसमान हैं, उन 7 आसमानों को अल्लाह ने क्या किया, पैदा किया है।
ہمارا یقین یہی ہونا چاہیے، سائنسدانوں کی تحقیق پر ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ ہر چیز کو جاننے والی ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے احاطے علم کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔